सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युरद्दु दुआउ बैनल अज़ानी वल इक़ामती। तिरमिज़ी शरीफ। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने कहा TRS अपने वादों की है पाबंद, बेघर अफराद के ख्वाबों की ताबीर डबल बेडरूम मकानात के हवाले। किसानों की फलाह व बहबूद में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सबसे आगे, रियासती वजीर हरीश राव का बयान। और बीजेपी ने मुखालिफ किसान कवानीन बनाकर किसानों के साथ धोखा किया है, नायब सदर किसान कांग्रेस का बयान। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी और मेयर हैदराबाद बोंतु राम मोहन, MLA मुशीराबाद मोठा गोपाल के हमरा हल्के शेराबाद के बागलिंगम पल्ली में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि हुकूमत की जानिब से ये मकानात बेघर अफराद के ख्वाबों की तकमील के लिए बनाए गए हैं। हुकूमत ने इन मकानात की तामीर के लिए रकम की परवाह नहीं की। आज इन मकानात की मार्केट के हिसाब से कीमत 35 से 40 लाख है। इन्होंने इस्तिफादा कुलिनगान से कहा कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और माहौल को आलूदगी से पाक रखा जाए। इस मौके पर रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। లంబడి తండ అక్క చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములకు పేరు పేరున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులకి, కార్యకర్తలకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, అడ్వాన్స్గా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నిజంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఏ లంబడి తాండాలోనైతే గతంలో పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు ఆనాడు బతుకున్నప్పుడు, స్థానికంగా అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు వారిద్దరూ కూడా కలిసి వచ్చి ఇదే లంబడి తాండాలో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతంలోనే ఈరోజు ఆ ఇండ్లు కట్టి పూర్తి చేసి మా ఆడబిడ్డలకు అప్పచెప్తా ఉంటే తప్పకుండా నాయన్ నరసన్ ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నా శాంతిస్తుంది. మా ఆడబిడ్డల సంతోషాన్ని చూసి వారు కూడా తప్పకుండా సంతోషపడతారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత గొప్పగా, ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత పెద్దగా ఈరోజు 18,000 కోట్ల రూపాయలతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 18,000 కోట్ల రూపాయలతో 2,72,000 ఇండ్లు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా పేదవాడి మీద ఒక్క పైసా భారం పడకుండా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మా అక్క చెల్లెలని, ఆడబిడ్డలు నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరెవరికైనా ఒక పైసా ప్రభుత్వం వాళ్ళు అడిగినారా లేక ఇంకెవరైనా అడిగినారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. రోడ్డుకి 50 మీటర్లు లోపల, అంటే ఇక్కడ మీకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ పక్కకు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం పక్కనే ఇప్పుడే పక్క బస్తీ సోదరులు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు, మాకు కూడా కట్టియండి, భగత్ సింగ్ వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు, మాకు కూడా కట్టియండి అంటా ఉన్నారు. ఇదే ఒకవేళ ప్రైవేట్ బిల్డర్ కట్టింటే ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్కి కనీసం 40-50 లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే అపార్ట్మెంట్ ఈరోజు ఉచితంగా మీ చేతిలో పెడుతున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో కూడా, అంటే బస్తీలు లేని, స్లమ్ లేని నగరంగా చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో ఎక్కడెక్కడైతే స్లమ్స్ ఉన్నాయో, సనత్ నగర్లో చూస్తే IDH కాలనీ కానీ, ఇక్కడ లంబడి తాండాలో నేను ఈరోజు ఉదయమే నాకు మా ఆఫీసర్లకు ఫోటో పంపినారు. ఇదివరకు ఎట్లా ఉండే లంబడి తాండా ఇప్పుడు ఎట్లా అయిందో ఒక ఫోటో కూడా ఈరోజు ఉదయమే నాకు పంపితే నేను కూడా सोशल मीडिया मित्रुलंदरिकी కూడా పెట్టినాను. हल्का असम्बली मेदक के चिना शंकरमपेट में 22 लाख की लागत से तामीर करदा रैतु वेदिका का रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया है।
इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की तरक्की और बहबूद के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो मुल्क की किसी और रियासती हुकूमत ने नहीं किए हैं। हरीश राव ने कहा कि आज सारे मुल्क के किसान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना का किसान खुश है क्योंकि इनको इनकी फसल का वाजबी दाम मिल रहा है और खाद भी वाफिर मकदार में इनके पास मौजूद है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज इंदिरा पार्क में मरकजी हुकूमत की जानिब से किसान आंदोलन के मुताबिक अपनाए गए रवैये के खिलाफ आज एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया है। इस धरने की सदारत कायदे मुक़न्नना कांग्रेस भट्टी विक्रमांगा ने की है, जबकि इस धरने में कुल हिंद किसान कांग्रेस के नायब सदर कुदंड रेड्डी, साबिक वज़रा श्रीधर बाबू, गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, हनुमंत राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कुदंड रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों की तरक्की और उनके मसाइल के हल को अपना अवलीन तरजीहात में रखा है। कौमी सतह पर सबसे पहले कांग्रेस हुकूमत ने ही एक हुक्मनामे के जरिए किसानों के कर्ज की माफ़ी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों से वादे किए लेकिन इन्हें वफा नहीं कर पाई और किसानों के खिलाफ कवानीन बनाए। और आज जब किसान एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। इस धरना प्रोग्राम में दीगर कायदीन सदर रियासती शोबे अक़लियत अब्दुल्ला सुहेल, सेक्रेटरी PCCC फेरोज खान व दीगर ने भी शिरकत की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। किसानों की मदद के लिए अपने तेलंगाना में ही नहीं, दिल्ली में भी जो अपने किसान वहाँ पर धरना में बैठे हैं, 1 महीना बढ़ गया मगर फिर भी मोदी की सरकार को आंखें खोल नहीं रही है। यहाँ के सरकार को भी इसी तरह से किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। परसों इन्होंने जो परचेज सेंटर्स खोले थे केसीआर ने, उसको बंद कर दिया। उसके वजह से किसान को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अपनी वो जो उसकी जो खाद है बेचने के लिए भी समस्या हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जो परचेज सेंटर्स है उसको फिर एक बार में केसीआर वापस लेके आए और मोदी के साथ हम लोग हमारे पूरे जो फार्मर्स फाइट कर रहे हैं पूरे देश में उनके साथ देते हुए हम भी कह रहे हैं, यहाँ की तेलंगाना कांग्रेस हो, देश की कांग्रेस हो, कि फार्मर्स के साथ हैं हम। और जो 3 बिल लेके आए वो 3 बिल्स को पूरी तरह से वापस ले ले, इसी तरह से हमारा डिमांड है आज। एलबी नगर इलाके में मिशन भगीरथा के तहत तामीर करदा पंप हाउस की तामीर का इफ्तिताह उस वक्त तनाज़े में तब्दील हो गया जब इसका इफ्तिताह रियासती वजीर बल्दी नस्म व नस्क के तारक रामू ने वक्त मुकर्ररा 12:30 बजे से 1 घंटा कबल इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। जब रेवंत रेड्डी वक्त के हिसाब से वहां पहुंचे तो पाया कि पंप हाउस का इफ्तिताह हो चुका है, जिस पर वो वहां मौजूद अहदेदारों पर बरहम हो गए और उनके साथ किए गए रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। रेवंत रेड्डी के हामियों की जानिब से KTR डाउन डाउन के नारे बुलंद किए गए। నాకు అర్థం కాలే 12:30 టైం ఇచ్చి మీరు 11:45 ఓపెన్ చేస్తారా? ఆవేశం ఏంటంటే మీ ఇష్టమా? మీరు టైం ఇచ్చిన ఇన్వైట్ చేసి మీరు 11:30కి ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారని అడుగుతున్నా. మీ ఇష్టమా అంటున్నా. మెల్లగాడి కదా మీరు ఎట్లా ఎవడు వాడు ఆఫీసర్ నాకు పిలు పిలువండి అంటున్నా. ఏ టైం ఇచ్చినా టైం ఓపెన్ పిలువండి అంటున్నా. ఏ టైం ఇచ్చినా టైం ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఏరియా
मैं तमा చేస్తున్నా మీరు ఎవరు వాడు ఆఫీసర్ మీరు చూసుకుంటా మాట్లాడుతున్నా అదే విధంగా జవాబు అవును బాసు నువ్వు ఎమ్మెల్యే లోకల్ ఎమ్మెల్యే నువ్వు లోకల్ ఎమ్మెల్యే నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నీ పర్లేదు లేదా అంటే నీ ప్రోటోకాల్ తెలియదా అరే అందరు నువ్వు 12:30 నాకు ఇన్వైట్ చేసి నువ్వు రాజకీయం కాదు मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गुप्ता ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ कोविड वैक्सीन पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया है, जिसमें इन्होंने हिदायतें जारी की कि वैक्सीनेशन के लिए वसीतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और महकमे सेहत के कारकुनों, नर्सों, सफ़े अव्वल के कोरोना वॉरियर्स और 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को कोविड वैक्सीन देने के लिए इंतज़ाम करने की हिदायतें जारी की। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि बल्दिया और पंचायत राज के मुलाजिम भी कोविड से मुकाबले में अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा इन्हें भी वैक्सीन लगाने की तजवीज़ पेश की। नाजरीन, यहाँ बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, उर्दू अगर जिस्म है तो जान है शायरी, उर्दू अगर फूल है तो खुशबू है शायरी। ज़ुबान उर्दू और शायरी का एक अटूट रिश्ता है। इस फ़न शायरी को मंजर आम पर लाने के लिए सिटी इंडिया न्यूज़ ने अपना एक अनोखा प्रोग्राम महफिल शेर का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने उन तमाम शोरा को पेश करेंगे जो न सिर्फ हमारी रियासत तेलंगाना के मारूफ शोरा हैं, बल्कि कौमी सतह पर भी अपनी फ़न शायरी के ज़रिए अपने जलवे बिखेर चुके हैं। तो नाज़रीन, इंतज़ार किस बात का, देखिए हमारा प्रोग्राम महफिल शेर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद ऐन दक्कन की खबरों की जानिब। नूरुद्दीन नूर गौरी गुलबर्गा के मुरत्तिब किताब बउनवान रियाज रहीम अहले कलम के नज़र में की रस्म रोनुमाई का ज़ेर एहतमाम मिर्ज़ा गालिब एकेडमी बमुकाम उर्दू घर हैदराबाद ज़ेर सदारत प्रोफेसर डॉक्टर मजीद बेदार के इनेकाद में अमल में लाया गया। किताब की इजरा बदस्त मारूफ अदीब व शायर मोहसिन जलगानवी ने अंजाम दी। इस जलसे रोनुमाई में मुमताज़ फंक्शन राइटर शमीउल अहमद और मारूफ सहाफ़ी व शायर असद सनाई बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक रहे। बादशाह रियाज रहीम के ज़ेर सदारत खुसूसी शायरी नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेज़बान और मेहमान शोरा ने अपना कलाम सुनाकर सामीन को महफूज किया। जलसे रोनुमाई और शायरी नशिस्त की निज़ामत महबूब खान असगर ने बहुस्न वक़ूबी अंजाम दी है। रात 10:30 बजे ये यादगार खुसूसी शायरी नशिस्त अख्तिताम पसीर हुई है। अपने ही जब पास न हो तो
अपने ही जब पास न हो तो पूंजी क्या, सरमाया क्या? अपने ही जब पास न हो तो पूंजी क्या, सरमाया क्या? घर झूठा तो समझ में आया है, अपनों का साया क्या? लौटा जब परदेश से मैं तो सबने पूछा क्या लाए, माँ ने ख्वाब में आकर पूछा बेटा तुमने खाया क्या? अपने ही जब पास न हो तो पूंजी क्या, घर झूठा तो समझ में आया है, अपनों का साया क्या? लौटा जब परदेश से मैं तो सबने पूछा क्या लाए, माँ ने ख्वाब में आकर पूछा बेटा तुमने खाया क्या? और वो कथा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान के शोरा तक चोरी करके मेरा हाल खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भरा हूँ। खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भरा हूँ, पड़ोसी भूखा है। पुराने पुल के पास मौजूद धोबी घाट जो कि हालिया सैलाब की वजह से तबाह हो चुका है और वहां मौजूद मंदिर, दरगाह और आश्रमखाने में कचरा जमा हो गया है, जिसकी वजह से धोबी तबके को काम करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। जगह तंजीम की जानिब से इस खुसूस में हुकूमत से और मकामी MLA कौसर मोहिउद्दीन से अपील की गई है कि फौरी इस घाट में जमा कचरे की निकासी के लिए इक़दाम उठाए जाए। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। ये ट्रेन आ रही कहाँ का? 4-5 दिन से तो आ रही बोल रहे। भी नहीं साहब, कारोबार तो ठंडा है, लॉकडाउन की तरफ से कारोबार कुछ भी नहीं चल रहा, जो भी है थोड़ा बहुत चल रहा, खाने करने को बहुत परेशानी हो रही। तो यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है आपको? यहाँ परेशानी ज़्यादा हो रही, पूरा गलीस पानी आ गया, उससे हमको एलर्जी हो रही, हाथापाना खुजा रहे, कांटे चुभ रहे, पीने वाले पी के शीशे फेंक दे रहे, देख रहे नहीं, कोई भी गेट वगैरह कुछ भी नहीं है, हमको पानी की सहूलत नहीं है, हौजों की सहूलत नहीं है। 2 हौजा है, हम लोग 10-12 जनों मिलके सहयोग कर लेके काम चला रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे रस्सियाँ उस्सियाँ जो भी है पूरा भय गया, हौजा पूरे डूब गए, से सिर्फ 2 ही हौज पे काम चल रहा हमारा। हम टोटल हमारे कने 25 हाउस है, उसमें से 2 ही हाउस पे काम चल रहा हमारा। कितने साल से करते हैं आप? हम लोग यहाँ पर कम से कम 4 या 5 पीढ़ी से काम चल रहे हैं। हमारे बाप दादा कर रहे थे, अब हम लोग कर रहे हैं। अब बाप दादा तो नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को परेशानी ये हो रही, तेलंगाना गवर्नमेंट से हमको ये फैसिलिटीज़ होना, जल्द से जल्द थोड़ा काम कराइए हमारा। हमारे MLA साहब भी कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे कारपोरेटर साहब भी कुछ भी नहीं कर रहे। कारपोरेटर मित्रा कृष्णा है, आए चले गए देख के, और MLA साहब तो अब तक आए नहीं यहाँ पर। हम रजक साहब जी विठल रेड्डी रुकन असेंबली भैंसा ने आज अक्षरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया है और दवाखाना इंतजामिया के मैनेजिंग डायरेक्टर R प्रकाश को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी है। इस खुसूस में रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने कहा कि कोबिर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर डॉक्टर R रमेश ने अपना 22 साल तजुर्बा हासिल करने के बाद अपने आबाई तालुक़े की आवाम की खिदमत करने के कर्ज से इस हॉस्पिटल का क़याम अंजाम दिया है, जो काबिल फ़ख्र की बात है। इस इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी इनकम टैक्स आला अहदेदार R प्रकाश, डॉक्टर दामोदर रेड्डी, ज़िले परिषद नायब सदरनशीन बादशाह टी राजना, मार्केट कमेटी चेयरमैन भैंसा P कृष्णा व दीगर मौजूद थे। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। लेकिन नाम नहीं कमा सकते और अपनी आवाम के लोगों की सेवा नहीं कर सकते, और वही एक इरादा है, वही एक मकसद है जो भैंसे के अंदर अस्पताल ओपन करके अपने लोगों को सेवा करें,
ताकि वो लोग रात के 12 बजे क्यों न हो, कोई भी गरीब लोग हो, कोई भी कमजोर वर्ग हो, हैदराबाद नहीं पहुंच पाता, निजामाबाद नहीं पहुंच पाता, तो वो जरूर रात के 12 बजे नहीं 1 बजे किसी भी 24 घंटे उनका दरवाजा खटखटा सकते, क्योंकि जो डॉक्टर साहब आए वह भी एक गरीबी और हर चीज को देखे हुए हैं। और मुझे लगता है, मुझे आत्मविश्वास और विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी सबको तकलीफ देखा है वो सबको तकलीफ को समझ सकता है और तकलीफ समझ के उनको सेवाएं करने में वो आगे रहेगा और उनको विकास होगा। और सभी जो एमएलए साहब ने आज इनाग्रेशन किए हैं, हमारे जेडपीटीसी राजना साहब भी है, रमेश साहब भी है और जाकिर अहमद साहब भी थोड़ी देर में आएंगे, तो काफी बड़े बड़े लोगों का उनको आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के तहत वो गरीब लोगों की आवामों की सेवा में रहेंगे। और चमा लेआउट यादगीर के साकिनान जनाब अब्दुल रफू डिप्टी एसपी का बतौर लोक आयुक्त एसपीओ डॉक्टर मुबशिर अहमद साजिद मेडिकल ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की होने पर मस्जिद अक्सा कमेटी चमा लेआउट अक्सा कॉलोनी यादगीर की जानिब से तहनीत पेश की गई है। इस मौके पर एजाजुल हक एसपी अब्दुल रऊफ मीडिया से इजहार ख्याल किया है। इस मौके पर मुसलियानी मस्जिद की कसीर तादाद यहाँ मौजूद थी। कर्नाटक गुरमिटकल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साजिद खान की ये रिपोर्ट। आज मुझे चामा लेआउट से बहुत फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि हमारे मोहल्ले अक्सा कॉलोनी चामा लेआउट से 2 ऑफिसर जो अपने पोस्ट पे थे, जो एक अब्दुल रऊफ साहब कर्नल जो DYSP थे बेंगलुरु में, उन्होंने प्रमोशन लेकर यादगीर पे एसपी की हैसियत से लोकायुक्त में ज्वाइन हो गए। और हाल ही में डॉक्टर मुबशिर अहमद साजिद अपने 18 साल खिदमत अंजाम करते हुए मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से कुछ ही दिन पहले उनको भी एज ए तालुका ऑफिसर की हैसियत से प्रमोशन दिया गया और उनके काम पर देखकर उन्हें यादगीर में ही पोस्टिंग दिया गया। बहुत खुशी की बात है। उसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में देखा गया तो साले साल हमारे चामा लेआउट से बहुत सारे बच्चे आला तालीम हासिल करके अच्छे नंबरात से पास होकर मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं और हमें ये देखकर बहुत फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर एक के बच्चों को इसी तरीके से तालीम। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म शाख यादगीर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आर रागप्रिया को एक याददाश्त पेश की गई है, जिसमें वज़ीर आला कर्नाटक येदियुरप्पा की जानिब से अक़लियती बजट में की गई कमी पर इजहार अफसोस किया गया है। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला कर्नाटक से अपील की है कि अक़लियती बजट में इजाफा किया जाए। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फॉर्म शाख यादगीर में एक जिम्मेदार औद बिन उमर चावुश, याकूब सैयद, ख्वाजा मोइनुद्दीन रुकने बल्दिया गुरमिटकल, कमरुल इस्लाम रुकने बल्दिया, फनी एजाज सकरी, फारूक तरकश, मोहम्मद नसरुद्दीन, अहमद शहबाज जागीरदार, इरफान सदाम के अलावा दीगर भी यहाँ मौजूद थे। कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने कहा TRS अपने वादों की है पाबंद, बेघर अफराद के ख्वाबों की ताबीर डबल बेडरूम मकानात के हवाले। किसानों की भला व बहबूद में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सबसे आगे, रियासती वजीर हरीश राव का बयान। और बीजेपी ने मुखालिफ किसान कवानीन बनाकर किसानों के साथ धोखा किया है, नायब सदर किसान कांग्रेस का बयान। अन्य दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और प्रोग्राम्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।